women's empowerment and recognizes change makers. As a jury member of the Ashoka Foundation, she selected social entrepreneurs for the nationwide Youth Venture Program. Today, we are honored to have Dr. Runa Mehta share her expertise and insights with us. Her presence here is a testament to her remarkable achievements and her commitment to advancing the field of HR. Please join us in giving a warm welcome to Dr. Runa Mehta as she will take the stage to enlighten us with her valuable perspectives and knowledge. Students are requested to keep their questions ready as it will be discussed at the end of the session. But before we start, we would like respected our Dean Dr. Richa Daya to facilitate our guest. Please, ma'am. Very good morning. So I'm just first, contact is with you. So I'm just trying to look around and see what a fantastic group. So congratulations that you're all part of such a beautiful institute. So your first year, second year, which year? Both. Fabulous. So and some of you have already decided your roadmap, like which stream you are going to be in, HR, finance, marketing. Any other stream? Or these are the three? Am I audible? All the three. So how many in HR? So all of you will be friends of mine from tomorrow, if not today. Doesn't mean that I'm going to talk about HR, not at all. Of course, we have already looked at the topic. Okay, let's look at business, because you are all business students. So I'm sure you are all excited to embark upon the corporate world, and some of you possibly are looking at how to join family business. Anyone have family business here? Fabulous. So your parents must be excited that my kids will be doing MBA and come and join and grow the family business. And any one of you are excited about joining startup? One. How about making your own startup? अपना startup किसको बनाना है? Okay, not bad. किस field में सोचा है अभी? Not yet. No problem. अपना startup शुरुआत करने से पहले take that route, join someone's place. Learn from their mistakes, then make your own. है ना? So wonderful. So I can see most of you are looking at joining corporate world, and that's definitely a great start. And eventually, some of you would become CEOs. Some of you would be intending to have your own organization. That's a journey. So my first recommendation: 10 साल से पहले change मत करना. At least work for 10 years. That's point number one. Secondly, the way you would look at historical, standing of corporate world. Today I thought थोड़ा सा बदल देते हैं उसको. So historically, your parents, or maybe your own studies, your own understanding from your school, or maybe your, undergrad, experience, you might have thought about some way the corporate exists in terms of employment. The first set of thing is that how do you look at our employment? So for employment, I'm sure you have seen the journey, and you've heard probably from your, seniors or elder brothers, sisters, cousins, that the corporate world offers, certain elements. However, that changed. We all know when pandemic happened. So the whole context changed in pandemic, and we started seeing the world has become, much more, flat. When we started our journey, we were told that the digitalization has happened, automation has happened. तब ना वो digitalization word नहीं use होता था, तब automation बोला जाता. So I started my career as a computer programmer, but I was told that आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो sales में आ जाओ. Then I got the advice कि why not HR, which is people management. So you can look into HR function as a HR function expert,
At the same time, handling people management aspect. I definitely felt excited and changed my career. And definitely for 20 years or so, as you might have heard about that long introduction of mine. So 20 साल तो हमने नौकरी कर ली, understood the gamut. But then I stepped on to the business world. So I have started my own company, started working with largely startups, and also helped organization for transformation journey. Transformation क्यों? क्योंकि change management जो होता है वो हमेशा जायज़ है. Change is the always constant part. आपने सुना होगा. So change चाहिए, और चेंज ना हो तो बहुत बोरिंग भी हो जाएगा लाइफ. आपको अगर हम रोज़ बोले एक ही चीज़ खाओ, आज हर दिन मैगी खाओ, मज़ा तो नहीं आएगा ना. कभी कभी तो थाई भी चाहिए, कभी कभी मुगलई भी चाहिए. हाँ, सो वी डेफिनेटली लाइक डाइवर्स, everything we look at as a diversity. I am not talking about diversity at the context of DEI. अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे. फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड जो है it's absolutely full of diversity and we love change. चेंज के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, है ना. अगर कल को आपको पूछा जाए व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो, यू मे गेस इट, बट इफ़ यू आर एनालिटिकल माइंड यू विल डू सम प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन पास्ट. सो कहने का मतलब ये है, चेंज एक तो है आपको एम्ब्रेस करना है, उसके साथ एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट चेंज मैनेजमेंट को समझना है. देन वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट हैपेंड अप टिल 2019, what 2020 brought in our life, and how we are embarking upon 2023. 2020 से 2023 का जर्नी बहुत बदल गया है. Things have started looking up. This year is beautiful. There are a lot of industries are coming up. World economy is changing. India economy is changing. So when we are talking world economy, India economy, I'm sure you might have heard of from all the political leaders, economic leaders, and our corporate world that India is going to be the best. We are actually going towards to be the number one as far as economic framework is concerned. अब वो ऐसे तो होगा नहीं सोचने से ही, आपके थ्रू होगा. यूथ विल मेक इट. हमेशा ये होता है, यूथ लीडर जो होते हैं वही बदल देते हैं दुनिया को. सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ. आप लोगों ने जनरेशन्स के बारे में सुना होगा कि जनरेशन मिक्स, ऑलराइट. सो राइट फ्रॉम द बेबी बूमर टू जनरेशन जी एंड आप मिलेनियल है. हर जो नया ग्रुप आता है, ग्रुप ऑफ यूथ, उन्हें हम मिलेनियल कहते हैं. तरह तरह के थ्योरीज़ हैं. जेनजी भी सोचते हैं बट जेनजी नहीं है. आप वेरी सून यू विल बी टोल्ड एज कि आप तो जेन ए हो. कुछ नई ऐसी परिभाषाएं निकल रही हैं. सो कहने का मतलब है हर जनरेशन कुछ नया लाता है, बट यू विल बी वर्किंग विद ऑल जनरेशन. मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अब मैं तो डिफरेंट जनरेशन की हूँ, बट आप मुझे मेरा लेक्चर सुन रहे हो. इसका मतलब क्या है, योर कॉर्पोरेट इज़ गोइंग टू ऑफर generations, different generation, but we always look up to the new generation because you bring lot of fresh ideas, lot of new energies, lot of new understanding, lot of new learnings, because you are actually part of that digital world. आप ही के जो जनरेशन है उन्होंने प्रीवियस जनरेशन्स को कंप्यूटर सिखाया है. इफ़ माई मदर टुडे यूजेज ऊबर एंड व्हाट्सएप एंड शी टेल्स माई नीस ज़रा वो फ़ोटो अच्छे से खींचना, डीपी चेंज करना है, तो किसे बोलती है वो? ग्रैंड चाइल्ड को, राइट. सो व्हाट्स हैपनिंग, इवन दैट जनरेशन हु आर इनटू द 70s and 80s आर लर्निंग डिजिटलाइजेशन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट today's employees and employment, we need to look at few things. थोड़ा सा हम अपना बजट पे चले जाते हैं जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हमारे 7 पिलर्स को दिया है एज अ पार्ट ऑफ बजट. उनमें से मैं 3 पिकअप करना चाहूँगी आपके लिए. ओके, एक तो मैं जो अभी बात कर रही हूँ दैट इज़ इंक्लूजन. सो वन ऑफ द पिलर विच हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर बजट इज़ इंक्लूजन. सो हाउ डू डू इंक्लूजन? Inclusion of entire, diverse population. This population we always talked about. हम लोग भी बचपन से, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बचपन से बोल रहे हैं, इंडिया ऑफर्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, राइट. सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है, इतना बड़ा देश है. एट द सेम टाइम टुडे वी ऑल्सो हर्ड अबाउट एज डाइवर्सिटी इज जेंडर डाइवर्सिटी. काफ़ी सालों से बात हो रही है, 10-15 years वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन ऑफ जेंडर इंक्लूजन.
But today, if you're sitting in this room, you should be open to gender beyond male female, that is third gender. So there are loads of people who are also looking at hiring a different gender because they are also human being, है ना. सो आज के डेट में उनके भी पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, उनके भी प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात हो रही है. सो बाय द टाइम यू विल बी embarking upon your corporate world, you will see the third gender is also part of your group. So what we are talking about inclusion here, one element which is gender inclusion, being gender agnostic. कैसे भी जेंडर आपके सामने आए, क्या आप ओपन हो, क्या उनके साथ काम करने के लिए आप राज़ी हो? प्लीज़ बी. दैट इज़ माई वन गाइडेंस टू यू. So be open to being gender agnostic. Don't think in your mind male hai, female hai. We already discussed about generation inclusion. So please open to work with any generation. We are actually working with government, India Employer Forum, various such organization. The policy should include roles and responsibility for different generation. आप घर में देखिए 90 and 100 year के जो हैं लोग हैं, and they are quite active. If you look around, 70s and 80s people are very active. So what we are saying, जो बैरियर बना लेते हैं ना, अरे ओल्ड है तो एनर्जी नहीं है, ओल्ड है तो वो समझते नहीं है, ओल्ड है तो वो कंप्यूटर्स नहीं जानते, प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. थिंग्स आर चेंजिंग. सो 2 level of inclusion we are talking about. But you're all global employees, global professionals. In no time you'll be part of any part of the world. So are you open for it? Have you understood global culture? थोड़ा इसके बारे में भी सोचिए. अगर आपको चाइना जाके काम करना है, इवन इफ उन्होंने पैंडेमिक फैलाया, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है वहाँ पे, हाँ, बिकॉज दे आर ऑल्सो क्वाइट अप इन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, राइट. और थोड़ा अमेरिका का जो है बहुत एक्साइटमेंट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन इन इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट एक्साइटिंग. They are actually looking at lot of recession now. Lot of investments are changing. All right? Europe is coming up, but they had been always neutral. They never had been aggressive. And if you look at Australia or UK, they had never been aggressive for India. They want Indians to go there and work. बट अगर आप ऑपोजिट देखें इन्वेस्टमेंट में, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहा है, हमेशा से एपैक से रहा है. आपने जापानीज़ देखा है, जो शुरुआत से हमारे ही बचपन से जापानीज़ इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे कंट्री में बहुत सारे. इनफैक्ट फर्स्ट एवर ऑटो इंडस्ट्री में चेंज आया जब मारुति एंड सुजुकी ने साथ मिलके हमारा पहला अपना इंडिजिनस कार जो है मारुति कार आया था. तो आप देखिए जापानीज़ एज अ इन्वेस्टर्स हैड बीन ऑलवेज देयर. अब कोरियंस आ गए हैं, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कोरियन थे, अगर आप LG एज अ कंपनी देखो तो थे, बट उनका काफ़ी फोकस आ रहा है. बट कोरियन इकनॉमी कहा जाता है इज़ वेरी डायबॉलिकल. सो उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए. लेकिन आपको क्या देखना चाहिए, वर्ल्ड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको स्कोप मिल रहा हो. ओके, सो लुक एट दो स्कोप्स. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट स्कोप्स, नॉट ओनली टू इमिग्रेट देयर. ये नहीं कि कनाडा में जाना है इमिग्रेट करके, ऐसा माइंडसेट नहीं है. माइंडसेट ये है, दिस ग्लोबल कंपनीज व्हेन दे इन्वेस्ट इन इंडिया, डू आई अंडरस्टैंड देयर कल्चर, बिकॉज आई विल बी पार्ट ऑफ देयर कल्चर, वेदर आई वर्क इन इंडिया और दे सेंड मी अब्रॉड फॉर शॉर्ट टाइम असाइनमेंट or for a maybe long term assignment, maybe they actually post me there for permanently. So these kind of things would happen to you. So third inclusion, I would say culture inclusion. क्या आप दूसरे कल्चर्स को पहचान रहे हो, क्या अपने कल्चर्स को पहचान रहे हो, और उसका जो एमैलगमेशन है उसको आप देख रहे हो. सो three things I am going to talk about inclusion. Another pillar I already touched very briefly is digitalization. Okay, so digital universities create हो रहे हैं. When it comes to computerization, computer literacy, skill building, it has gone to now school through our latest policy which is NEP 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे थर्ड जो उसका वर्जन आया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको प्रमोट किया है, तो उसके हिसाब से कुछ तो बदलेगा. कॉलेज में भी बदलेगा. ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से शुरू हो रहा है तो वहीं रुक जाएगा. entire link between school to college to post graduate to corporate, there will be huge link in terms of how the whole setup of education will change. In that context, the focus on skill building will keep on increasing.
It started very small when we talk about skill orientation. So knowledge skill attribute जो हमें success देता है, KSA, okay, this is going to be a pillar of success. So knowledge definitely you are looking at for as an individual. Your MBA program is helping you. But constantly आपको ये भी बोला जा रहा है आपके soft skills बहुत सही होने चाहिए. Soft skill कोई जानता है क्या होता है? Anyone has an idea what are soft skills? Communication is the first skill. Any other soft skill? It's called soft skill, pure communication, which is like your language skill, your voice modulation, your body language. There's something called business communication. Business communication doesn't mean that आप सिर्फ English जानते हैं तो आपके लिए तालियां बजेगी. Please know your mother tongue also. Please know your national language also, because you never know if you are part of this new world जो मैं अभी touch करने वाली हूँ, gig economy. This is the third pillar I'm going to talk about. You never know which industry you're going to join. If you're joining BFSI, किसी को पता है full form of BFSI? BFSI का full form? Brilliant. Can we all clap for him? Absolutely. So, banking, financial services and insurance, which is booming and will keep booming. Only थोड़ा सा wave आया था fintech में. Fintech went up and had gone down, and now they're steady. But BFSI as an industry will keep booming, because what they are doing, they are into microfinancing. कहते हैं ना गली गली में जाना है. हाँ, why that is happening? बैंक एकदम विलेज तक पहुंच गया है और उसको और ग्रो कर रहे हैं. उसका जो सपोर्ट सिस्टम क्या है, कुछ बता सकते हैं? डिजिटलाइजेशन बोल रहे हो? हाँ जी, डिजिटलाइजेशन. और उसका बहुत बड़ा एलिमेंट क्या है? हाउ बैंकिंग इज हैपनिंग टुडे. आपको कंप्यूटर खोलना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है. यस, हु सेड मोबाइल? हाथ उठाएं. सुपर. पर मेरे को तो किसी फीमेल आवाज़ आई थी. आपने हाथ उठाया. नो प्रॉब्लम. यू हैव अंडरस्टूड दैट मोबाइल टेलीफोनी इज़ द इनेबलर फॉर बैंकिंग. एंड अब हमें ये भी पता है कि मोबाइल तो एकदम गांव में पहुंच चुका है. उनके लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, लिटरेसी की ज़रूरत नहीं है. एवरीवन इज़ एबल टू यूज़ मोबाइल. So that is how, and I was speaking to a CHRO of Spice Money. This is a microfinance company, and they were saying their banking is happening through पानवालास. अगर पानवाला सभी जाते हैं, unfortunately we all go there. चाहे कितना भी मना कर दो, सिगरेट भी ना मना है, लेकिन वो एक ऐसा आउटलेट है, ऐसा एक बिजनेस है, बहुत फ्रीक्वेंसी में आपको दिखता है. उसके लिए कहीं पे भी स्टार्ट कर देते हैं वो बिज़नेस, और लोग वहाँ पे पहुँचते भी हैं. और इसीलिए आपने देखा होगा बेवरेज कंपनीज, कोक, पेप्सी वगैरह, वहाँ पे अपना एक क्रेट डाल देते हैं. हाँ, कोई जो फ्रूटी, ये वो जितने भी FMCG's कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स जो है पान वाला के पास पहुँचा देते हैं, बिकॉज दैट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ आउटरीच टू आर लार्ज पॉपुलेशन. सो दैट इज़ हाउ बैंक इज़ ऑल्सो टारगेटिंग दैम. So that industry will get to grow. So whoever has joined finance per se, great. But sales and marketing specialized people, don't worry, because they would need sales people, and HR will be always required. So that is one industry you can always look at as your future work, and they big time hire gig workers. So I'm going to get there. What is the meaning of gig worker? Okay. Second industry you will see is retail. All right. Look at the retail chain. How it is growing. It is coming towards you through malls, through hypermarket, modern market. So many ways they are coming to you, and even mom and pop shop. Mom and pop shop क्या होता है? Terminology सुने होंगे ना ये सब आपने. That variety of marketing outlet. Yeah. So absolutely, and obviously entwined with that is e-commerce. So what is happening? The whole roles and responsibilities of future leaders are growing in this particular way. So e-commerce industry, retail, BFSI definitely is going to grow. FMCG always will be there. So there are certain industry which may have highs and lows,
but certain industry is going to grow forever. So ideally you should look at that. We always get excited about technology industry, but not many of you join there. सभी को गूगल में नौकरी नहीं मिलेगी, मिले तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, अमेज़ॉन में बहुत लोगों को नौकरी मिल सकती है, डेफिनेटली. So because Amazon and the world fifth class management role and the roles which are growing are different. The growth is happening largely in the gig economy world. So अब हम gig economy में आते हैं, जो हमारा third player हम आज discuss कर रहे हैं. Anyone knows what is the meaning of that? Even if your colleague has started the this today's meeting. हाँ जी. एब्सोल्युटली. बट इंटरेस्टिंगली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर तो हमेशा था मैन्युफैक्चरिंग में. अगर आप फिर मैंने मारुति का नाम लिया था या हीरो हो, किसी भी ऑटो इंडस्ट्री भी देख लीजिए या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे ना. हॉस्पिटल, रिसेंटली आई वाज इन अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑरेकल इन मैंगलोर, ओके, एंड अपोलो हॉस्पिटल के CHRO स्पीकर थे, एंड दे टॉक्ड अबाउट दे ऑल द टाइम हायर डॉक्टर्स नर्सेज फुल टाइम तो होते ही हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ जो लैब के लोग होते हैं, देयर आर मेनी हाउस कीपर्स हैं, इवन होटल इंडस्ट्री कीप्स हाउस कीपर्स. इट हैड बीन देयर फॉर एवर, लेकिन हमने उनको शायद उस नज़रों से नहीं देखा. और उनका जो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब बनाते थे, तो हम फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के साथ ही उसको डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट कर रहे थे, फोरकास्ट भी कर रहे थे कितने वर्कफोर्स होंगे. बट वी हैव नेवर गिवन एज अ इंडस्ट्री मैनेजमेंट प्रोफेशनल दैट ऑल दिस पीपल हु आर इन कॉन्ट्रैक्चुअल, विच द लेडी सेड, एंड ऑल्सो फ्रीलांसर्स, द कंसल्टेंट्स, if they talked about doctors, that they also talked about many visiting doctors in Apollo Hospital. When we talk about Swiggy और सच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको कौन से गिग वर्कर्स दिखते हैं वहाँ पर? आपके घर में आते हैं वो डिलीवरी बॉयज़. सो दे टाई अप विथ कंपनीज लाइक डिलीवरी, ये तो है, क्योंकि एंड मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉट ऑफ स्टाफिंग कंपनी टाई अप. कोई स्टाफिंग कंपनी का नाम जानते हैं आप? हम जब छोटे थे तब बॉडी शॉपर्स बोलते थे उन लोगों को, कि इंडिया से लिया US में भेज दिया, ऐसे बॉडीज़ भेज दी. हाँ, तो तब उनको बॉडी शॉपिंग बोलते थे, आज उसको स्टाफिंग बोलते हैं. तो स्टाफिंग कंपनी जो ऐसे टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं, नाम सुना है उनका आपने? दे आर वेरी लार्ज, लेट मी टेल यू. मैं थोड़ी हार्ड ऑफ हियरिंग हूँ, मेरे लिए ज़ोर से बोलना पड़ता है, नहीं तो मम्बलिंग सुनाई दे रही. हाँ, एनी कंपनी, एनी वन? नहीं मालूम? ओके. टीम लीज सुना होगा आपने? मैन पावर, देन वी हैव रैंडस्टैंड, दीज आर ग्लोबल कंपनी. हाँ, वर्ल्ड वाइड है मैन पावर. सो आई व्हेन आई फर्स्ट टाइम विजिटेड यूरोप एंड मैन पावर देखा, मैंने सोचा इंडियन कंपनी है. देन आई लुक्ड अप ऑन द गूगल, देन आई रियलाइज नो, मैन पावर सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैन पावर इज अ ग्लोबल कंपनी, रूट इज US. So what do? They tie up with organization. Some of you may actually get assignments and you'll be part of this organization, and you'll be working with probably with Amex or maybe Google or Microsoft. But आप उनके रोल में रहोगे till the time there is a possibility of absorption. So there is a hand-in-hand approach happening when it comes to the employment and onboarding employees. Another organization, multiplier. So I was speaking to CHRO स्मृति श्रीवास्तवा, तो मैंने बोला स्मृति आप मल्टीप्लायर में क्या करते हो, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? बोले हमारा 3 वर्टिकल है. एक तो प्योरली वर्कफोर्स प्रोवाइडर टू कंपनीज, so we have around 7,000 people there. Then they also have some technology based solution which they integrate, क्योंकि वो जो हायर टू रिटायर मैनेजमेंट करना पड़ता है इन लोगों का, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, सो ERPs चाहिए. सो Oracle अभी इंट्रोड्यूस कर रही है. Oracle कितनी पुरानी है, कितनी फेमस है ना? तो अभी इंट्रोड्यूस कर रही है हायर टू रिटायर मॉडल एज पार्ट ऑफ देयर Oracle फ्यूजन. अभी तक था नहीं उनके पास वो पॉसिबिलिटी. नाउ दे आर एम्ब्रेसिंग गिग वर्कर्स एंड दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, कि ये जो आप एम्प्लॉयज़ को जब आप बात करते हो, चाहे 1 घंटे के लिए भी आए, सोचो आप तो SIPs करने जाते हो 2-2 महीने के लिए,
So you are part of their structure now. They will show in their organization structure how many full-time employees, how many part-time, how many contractual, how many on SIPs, how many project-based, how many freelancers, consultants. They have to keep that in record. And that is how a new concept has come, which is called employer of record. And I'm actually working with a very exciting company called Atlas. They are number one in keeping employer of record, क्योंकि हर एक के हर मिनट का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि दे विल बी कॉम्पनसेटेड. फ्री में तो नहीं काम करना ना हमें, कभी कभी SIPs करना पड़ता है, बट पुट योर फुट डाउन इनसे मुझे चाहिए मेरा स्टाइपेंड. तो ऐसा एक सिचुएशन अभी क्रिएट होने वाला है. हाँ, so organizations are coming up pre-planned exercise to build workforce. That is how even startups are ready to pay stipends. I'm working with a fantastic organization called Job. Job का फुल फॉर्म है जॉय और परफॉर्मेंस. ये एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, OKR मतलब ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट. पुराने ज़माने में बैलेंस स्कोर कार्ड करके जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाता था, अभी भी हो रहा है. लेकिन अब वर्ल्ड हैज़ चेंज. वो कह रहे OKR मतलब टास्क तक पहुंच जाओ. CEO अगर आपको कह रही है हमारा गोल है, ये हमारा विजन है, लेकिन हम जो एक्टिविटी भी करते हैं उसको भी आप कैप्चर करो, बिकॉज दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्टिविटी. क्यों ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि गिग वर्कर्स भी एक रोल लेते हैं, वो टास्क भी लेते हैं और वो एक्टिविटीज़ भी करते हैं. वो क्या होता है ना कि जब तक वो मिडिल मैनेजमेंट तक आता है, सुपरवाइजर तक आता है, उसके बाद कोई देखता ही नहीं है कि अल्टीमेटली कितनी एक्टिविटीज से एक गोल तक हम पहुंचते हैं. सो नाउ डेज वी आर गोइंग ग्रैन्युलर टू टारगेट ऑल्सो एंड अचीव ऑल्सो एंड रिव्यू ऑल्सो, ताकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब हो, किसी की बिजनेस परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा जाए, तो आपकी हर एक एक्टिविटी को जरूर रिकॉग्नाइज किया जाए. अदरवाइज पीपल थिंक आई एम डूइंग सम वर्क, नोबडी इज़ लुकिंग एट मी. मेरे सुपरवाइजर को तो पता ही नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं. सो एवरी एक्टिविटी हैज़ टू बी लुक्ड इनटू. सो सच फ्रेमवर्क्स आर गेटिंग क्रिएटेड. सो इसका मतलब क्या है, जो आपका ये गिग इकनॉमी है, नॉट ओनली आपको एज एन एम्प्लॉई रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको भी जो है एक शायद एक विजन बनेगा एज एन एम्प्लॉई. इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माई एक्स कलीग फ्रॉम कन्वर्जेस. इज़ नाउ ऑप्टम करके कंपनी है हेल्थ केयर में, ऑप्टम UHG, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, उसका वो CHRO है. एंड नाउ ही इज़ बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को. एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट, मैम मैं क्या करूँ, दुनिया इतना बदल गया है. क्या हो गया बाबा? नो, माई कज़न डजन ही इज़ अ टॉप ऑफ अ कॉलेज बट ही डजन वॉन्ट टू टेक एन असाइनमेंट. तो मैंने बोला क्या घर बैठेगा? फिर हाउ विल ही अर्न? बोले नहीं मैम, उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है. तो क्या कर रहा है, वो वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कर रहा है. उसका जो आउटपुट है ही सेंडिंग इट टू वेरियस कंपनी. किसी को 3 इडियट्स याद आ गया होगा ना इससे. हाँ, सो इंजीनियरिंग से कैसे फरहान ने चेंज कर लिया. हाँ, तो मैंने भी उसी के बारे में सोचा था जब मेरे ये क्षितिज कश्यप जो ऑप्टम के CHRO जब बता रहे थे, तो मैंने बोला अच्छा वो फरहान की तरह बनेगा. बोले नहीं, उसको वहाँ तक शांति नहीं है. वो बोलता है कि आई एम अ गुड कोडर, सो मैं पार्ट टाइम कोडिंग भी करूँगा. तो एक तो उसको घूमना भी है, फोटोग्राफी भी करनी है और उसको भेज के पैसे भी कमाने हैं. कोडिंग भी करनी है क्योंकि सिर्फ फोटोग्राफी से उतने पैसे नहीं मिल रहे, अभी वो फेमस नहीं है. सेकेंड चीज़ वो क्या करे, कोडिंग आती है तो पार्ट टाइम कोडिंग करना है, और इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, many companies they don't want full-time coders. They are giving even my time onwards lot of part-timers work. Interestingly moonlighting भी करते हैं. moonlighting सुना है आप लोगों ने? तो कुछ लोग तो कंपनी में काम करते हैं और वीकेंड में भी moonlighting करके दूसरे कोडिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं. सो अभी क्या हो रहा है, आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है moonlighting का, जो आप पता नहीं आपके प्रोफेसर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं इस बात को. अगेन इन Oracle's this conference I heard इमिट के जो CHRO थे प्रदीप्ता जी ने बोला मूनलाइटिंग एक्सेप्टेड. मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेरा जो टारगेट है ना वो आप लोग कर लो, उसके बाद क्या कर रहे हो मुझे क्या पता, बिकॉज हम देखने थोड़ी जा रहे हैं कि आप घर बैठ के क्या कर रहे हो. एक तरह का ये मूनलाइटिंग होता है जहाँ से पैसे कमाते. दूसरा मूनलाइटिंग पता है वो क्या बोल रहे थे, दैट कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम करके लॉग इन करके बैठे रहते हैं और पिक्चर देखते हैं, तो वो भी तो मूनलाइटिंग ही हुआ. तो उनका एनालॉजी और प्रोडक्टिविटी ये था
कि हम किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे कि तुमने लॉग इन लॉग आउट किया सिस्टम में और क्या तुमने पिक्चर देखा या किसी और का कोडिंग किया. दैट इज़ नॉट माई लुकआउट. हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट टास्क और नॉट. दैट इज़ द लुकआउट ऑफ द टीम मैनेजर. सो थिंकिंग कितना बदल रहा है सोचो. दे आर नॉट गोइंग टू पुलिस यू. पहले क्या होता था, वो पेरेंटिंग करते थे, कितना काम किया, कब किया, क्या किया, और वो पूछते थे इंस्टेड ऑफ गाइडिंग यू कि काम कैसे करना है. स्किल बिल्ड करना, रीस्किल करना, उसमें फोकस नहीं था. पुलिसिंग में फोकस ज़्यादा था. नॉट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एनवायरनमेंट. दैट वॉज वेरी एरिया जहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर नहीं था. द होल चेंज हैपेंड आफ्टर पैंडेमिक. ह्यूमंगस ट्रस्ट बिल्डिंग. कहते हैं ना, वो ट्रस्ट बिकेम इनेविटेबल पार्ट ऑफ टीम मैनेजमेंट. क्योंकि आप सबके घर में नहीं जा सकते, तो वो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस बिल्ड होना शुरू हुआ. दैट आई मस्ट नो हाउ मच वर्क आई शुड गिव फॉर 8 आवर्स. 8 आवर्स कोई काम नहीं करता है. योर प्रोडक्टिविटीज ऑफ 5.5-6 आवर्स. ये मानना है. जब हम स्टाफिंग प्लानिंग, वर्कफोर्स प्लानिंग करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट करते हैं, तो हम फुल आपका टाइम लॉक करते फॉर 5.5 to 6 आवर्स. कहते तो 8 आवर्स है, बट लोग क्या करते हैं 10 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स भी काम करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग. मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनको ओवर टाइम मिलता है. आप और मैं जो होते हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन. आई हैव वर्कड इन कन्वर्जेस, वर्कड फॉर 2 years 18 आवर्स. 35 प्रोजेक्ट्स है मेरे पास. किलिंग. हर मंडे 200 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता था. आई ज्वाइन देम एज पार्ट ऑफ few hundred and in 1 year we became 10,000. और मेरा टारगेट तब था 20,000 तक. So as a head of HR, 250 HR reporting to me, and everybody is focused. मेरा half the team was in recruitment and other was generalist. ओके जो रिक्रूटर थे, मैं किसी को याद दिला रही थी, तब ट्रेन भी हम सफ़र करते, इतना फ्लाइट इकोनॉमिकल नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2002-2003 व्हेन वी ग्रोथ हैपन इन कन्वर्जेस. टुडे दे आर कॉन्सेंट्रिक्स. ओके, नाम बदल गया है, कंपनी ने टेक ओवर कर लिया. तो मेरे जो रिक्रूटर है, पता चला भोपाल में हायरिंग करने गए हैं, भोपाल की ट्रेन से उतरे, उनके हाथों से ऑफ़र लेटर्स का डफल बैग जो है हैंडओवर हुआ. सेकंड हैंडओवर, ब्लैंक ऑफ़र लेटर्स एंड स्टैंडीज एंड एवरीथिंग का एक डफल बैग पकड़ा दिया गया. लखनऊ के ट्रेन में चढ़ के चले गए. बिलीव मी, दे वर सो डायनामिक, सो पैशनेट, सो कमिटेड टू द वर्क. ये नहीं देखा कि भाई अभी तो उतरे हैं ट्रेन से, भूख लग रही है, थोड़ा रेस्ट करना है, चेंज भी करना है. बैग उठाया, चले गए लखनऊ. दैट्स द वे दे हैव अचीव दोज 200 numbers वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक. क्योंकि 200 को ज्वाइन कराने से पहले 400-450 ऑफर लेटर देने पड़ते थे. क्योंकि ये जो सारे हमारे एम्प्लॉयज़ होते थे, वो क्या करते थे, ऑफ़र शॉपिंग. 5 ऑफ़र्स हाथ में लेके सोचते हैं कहाँ जाना है. तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, दोस्त लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच गए. 5 ऑफ़र हाथ में, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उतना ही मल्टीप्लाई करके ऑफ़र देना पड़ता था. तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ग्रोथ हमने देखा है, नंबर्स हमने देखे हैं. अब चारों तरफ देखो, पीपल विल से, जैसे मैंने ऑप्टम का नाम लिया, दे हैव 2.5 lakh एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड वाइड. कन्वर्जेस का नाम लिया, आज कॉन्सेंट्रिक्स में 30-40 हज़ार है. आई हैव अ क्लाइंट नेम होम क्रेडिट, दे हैव 70,000 पीपल. सो वी आर पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. Alright, so do we understand the composition of employment? Do I understand my role? So when I was giving the example of the person who's talking about I like photography, I like traveling, I like coding, 3 उसके पास स्किल है, तो उसको कैसे प्रोफेशनली इस्तेमाल कर रहे हैं सोचो. ये नहीं कि भाई छुट्टी ली और घूमने चले गए. भाई मुझे घूमना पसंद है तो लेट मी डू दैट. मेरा तीनों जो है पैशन फुलफिल होता है. And what this gentleman told me, this Kshitij told me that मैम वो हमसे भी ज़्यादा कमाता है. What a different way of looking at compensation management. Because he is not earning from one company, this gig workers work earn from different company. I am a live example of that. मुझे अगर full time employment मिलेगा तो X amount मिलेगा. But through gig economy, I know I earn 3 times than that. As an example. And this is happening right from the grassroots now. Right from the school.
Lot of people now takes this summer internship in school. Have you seen around? They are also being part of this thing. फिर आप बोलोगे नहीं वो तो 18 के बाद ही एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बट स्कूल्स के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं. दे डू सम CSR वर्क, बिकॉज उनको जब लंबी सी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है ना ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए, आईवी लीग में जाने के लिए, तो उसमें ज़रूर लिखते हैं कि मैंने CSR पे काम किया. दैट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट एप्लीकेशन. सो वो थोड़ी ना बोलेंगे नहीं अब तो स्कूल से बाहर जाएंगे, एप्लीकेशन लिखने से पहले हम CSR एक्टिविटी करें, पकड़े जाएंगे, कुछ नहीं किया. So this activity starts from school. Sometimes they are paid, sometimes they are not unpaid, but they are giving their skill and labor to those NGOs. Some level of employment is happening by the NGOs. So open your mind towards those kind of professional environment. So we are saying starting from school, from undergrad. Lot of school college students were doing undergrad. They are taking internship. They are doing live work. I know someone class 8 में coding करते थे वो. And he's part of उसको funding मिल गई है. And now he's actually in Ivy League. And he's my friend's son. Okay, class 8 से coding शुरू किया. Coding school में ही सिखाया जाता है. तो वहीं से एक्टिविटीज़ शुरू हो जाते हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं. So my fact of the matter is, are we all open to that? Are we looking at your future in a very different environment? For that, next point I would like to highlight is how are we looking at skill building? Besides your college, education, आप में से किसी ने भी Coursera, Udemy कहीं से भी कोई कोर्स किया है? किया है? Excellent. What kind of courses you have taken up? Language. Okay. What else? Extra? Excel. Microsoft Excel. Very good. Microsoft Excel को ना ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बना लो. कितना मर्जी आपको प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर्स और ERPs की नॉलेज होगी, वो एक्सेल स्किल हमेशा रहेगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग. अगर आप एडवांस MS एक्सेल देखें तो आपकी दुनिया में किसी ERP की ज़रूरत नहीं है. इट्स सो स्मार्ट. सो प्लीज़ make a friend out of this MS Excel. Other than that, I would encourage you to look at why people are talking about all the time this AI ML tools, why they're talking about analytical. ये जो AI ML एनालिटिकल टूल्स हैं उसके ऊपर पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि व्हाट हैपन्स फ्रॉम, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स में क्या होता है, फंक्शन एनालिटिक्स में क्या होता है. तो ये आप ज़रूर पहचानें, ज़रूर समझें, और इसके ऊपर अगर कोर्स कर सके आई विल एनकरेज यू टू डू दैट. अगर आपने नहीं किया तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में पीछे रह जाएंगे. जब आपको कंपेयर किया जाएगा दूसरे बिजनेस स्कूल्स के साथ तो थोड़ी दिक्कत आएगी. और हमेशा ये नहीं होता है कॉलेज ही सब कुछ आपको स्पून फीड करे. दिस समथिंग यू शुड डू फॉर अपॉन योर ओन इंटरेस्ट, बिकॉज वॉट इज़ हैपनिंग, द लर्निंग, होल लर्निंग प्रोसेस इन कॉर्पोरेट इज चेंजिंग. लर्निंग को ऐसे कहा गया है टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग. लर्निंग में LMS टूल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ द होल कॉन्टेक्स्ट इज चेंजिंग कॉल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, LXP. Learning experience is that the corporate is talking about every individual has an aspiration. मुझे ये बनना है ज़िंदगी में. अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर नहीं किया, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ले लेंगे. दैट इज़ हाउ पीपल चेंज जॉब्स. वन ऑफ द रीज़न. ओके, सो कॉर्पोरेट आर सेइंग फाइन, you decide what you want to learn, which skill you want to upgrade. We will fund you through our education assistant program or skill building program. They're funding them to retain them, to engage them, to build workforce. And many times when they look at those skills, they also see कि अरे नया प्रोजेक्ट आया है, कोई मर्जर एक्विजिशन हुआ है, तो इस स्किल की ज़रूरत है, हमारे ऑलरेडी लोग ट्रेंड है. सो दे बिकम फर्स्ट पर्सन टू बी अडॉप्टेड फॉर दोज न्यू प्रोजेक्ट्स. तो खुद का स्किल बिल्डिंग करना, अभी तो आप कॉलेज में हो, बट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको कंटिन्यूस स्किल बिल्डिंग करना पड़ेगा. बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, सो मेनी न्यू स्किल्स आर कमिंग. यू हैव टू कीप रीस्किलिंग योर सेल्फ, यू हैव टू कीप अडाप्टिंग टू न्यू स्किल्स. तो स्किल फोकस जो हमारा कंट्री बन रहा है, और इसमें एक और फ़ायदा है जो जिससे मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, बिकॉज आई कैन सी द क्लॉक, इट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई टाइम. सो लास्टली मैं बोलना चाहूँगी, NASSCOM का आपने नाम सुना होगा. So NASSCOM का पहचान हुआ था from ITS industry, because that is how they wanted to support global movement and India
एंड इट स्टार्टेड विद राजीव गांधी एंड देवांग मेहता ने नेस्कॉम शुरू किया था. अभी देवजानी आइच है जो इंटेल की सीईओ थी, अभी वो उनकी चेयरमैन है. मैं इस नेस्कॉम की बात नहीं कर रही. देयर इज़ अनदर सेट ऑफ नेस्कॉम्स इनिशिएटिव विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल मोबिलिटी. Their task is to keep connecting to the world and see कि कौन से ऐसे वर्कफोर्स है जो ग्लोबली मोबाइल है और कौन सी स्किल्स चाहिए, किस तरह का वीज़ा चाहिए और डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन सी स्किल एब्सेंस है. देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ इन यूरोप जहाँ पे स्किल इस तरह के स्किल की ज़रूरत है जो इंडिया में है. ओके, सो नॉर्मली हम जब ग्लोबल पोजीशंस की बात करते हैं तो अमेरिका जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं. सम ऑफ यू वांट्स टू गो टू यूके, बट यूके में जाना सिर्फ अब जर्मनी थोड़ा आगे बढ़ रहा है. लोग बच्चों में बोलते हैं मैम हम जर्मनी जाएंगे. ओके, बट यूरोप इज़ बैक एंड लॉट ऑफ स्किल्स विच आर प्रिवेलेंट इन इंडिया वो यूरोप में ज़रूरत है. क्या हम इसको पहचानते हैं? That is somewhere I would request you to explore, have your own crucial conversation and try to find out and see that we are not just unidirectional, not doing something which our parents and grandparents have done. You get new opportunity, new possibilities and show the world that how you are changing the world. Okay? Thank you very much. Us, and on behalf of JK Business School and entire academic community, we extend our sincere appreciation to you for sharing your time and expertise. We are also deeply humbled and honored to have Dean Dr. Richa Daya, who have dedicated their time to this talk. Throughout the session, we have explored various aspects of business, how it is transforming, particularly the gig economy, importance of change through real-life examples, gained insights into pillars of economy, that is diversity and inclusion, being gender agnostic, digitalization and gig economy, how it always existed and now growing with hand-in-hand approach in employment, moonlighting, shifting from micromanaging to guiding, compensation management, and how the times are changing now from grassroots level, skill building, learning experience and more. Now, on behalf of our esteemed institution, I would like to request respected Dr. Richa Daya to present to you with a small token of appreciation, a memento that signifies our gratitude for your valuable time, expertise, and the profound impact you have made on our academic community. May it serve as a reminder of this memorable occasion and our admiration for your remarkable achievements. I encourage each one of you to carry the knowledge and insights gained here today and apply them in your respective fields. Let us continue to foster a spirit of learning, collaboration, and innovation as we forge ahead in the corporate world. Lastly, I want to express our deepest gratitude to the audience, the student, the faculty, and distinguished guests who have graced us with their presence and actively participated in the discussion throughout the session. Your eagerness to learn, engage, and contribute has truly made this a memorable and enriching experience for all. Now, let's all gather together at the reception area of JKBS for a memorable group photo. Thank you for your time.